Hello everyone and welcome back to Wings Udan. Today is going to be your next lecture on current affairs for the month of August. I hope you all are done with your static part and this is the time when you should amalgamate your current affairs into the conventional and static part. Fine. There is an ancient Chinese philosopher by the name of Sun Tzu, and Sun Tzu says, in the midst of every chaos, there is always an opportunity. So this is your time to grab the opportunity and reap the harvest of your hard work that you have been putting into for this examination from past couple of months. इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर एंड देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर द डे ऑन द स्क्रीन. So the first question is on your screen and the first question is Cyclone Asna name has been proposed by which among the following country? The options are India, Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. So the answer for this question is Pakistan. Fine. Okay. ट्रॉपिकल साइक्लोन एस्ना के कंटेक्स्ट में आपको कुछ स्टैटिक चीजें याद रखनी है दैट जो साइक्लोन एस्ना है ये आया है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द मंथ ऑफ अगस्त they are in themselves a very rare phenomena to find. The last tropical cyclone which came in the month of August was in 1964. 1960 अगस्त के मंथ में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात आया. Fine. So this is the projected route of tropical cyclone Asna and इसने हिट करा है हमारी स्टेट ऑफ गुजरात को. Fine. And the name, the meaning of Asna is praised one और acknowledged one. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कंटेक्स्ट में आपको इनकी नेमिंग याद रखनी है कि किस कंट्री ने नेम प्रपोज किया है और इस नेम का मतलब क्या है. सो द साइक्लोन Asna name has been proposed by Pakistan and the meaning of the name cyclone Asna is praised one or acknowledged one. Fine. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपने अपने क्लाइमेटोलॉजी के स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि इन द मंथ ऑफ अगस्त स्पेशली and off and towards the eastern margins of the continents, sorry, western margins of the continents and eastern margins of the oceans. These tropical cyclones are very rare to find in the month of August. Fine. Okay. So the next MCQ for the day is exercise the first phase of the Tarang Shakti exercise. तो जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये दो फेजेस में कंडक्ट की गई है, फेज 1 एंड फेज 2. यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट फेज ऑफ द तरंग शक्ति एक्सरसाइज 2024 टू प्लेस इन. द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली एंड योर तमिलनाडु. So the answer for this MCQ is Tamil Nadu. Fine. Okay. फर्स्ट फेज जो हुआ है तमिलनाडु में वो प्रिसाइजली हुआ है आपके सुलार एक जगह है वहां पे. फाइन. एंड सेकंड फेज जो हुआ है ये हुआ आपका जोधपुर राजस्थान में. फर्स्ट फेज की डेट रही है आपकी 6 अगस्त टू 14th ऑफ अगस्त एंड सेकंड फेज की डेट रही है आपकी 29th ऑफ अगस्त टू 14th ऑफ सितंबर. And this whole exercise has been conducted by Indian Air Force. So you can see the variety of stakeholders on the screen. आप इसको एक बार नजर दे दीजिएगा. Fine. So these are the respective countries that participated in Tarang Shakti exercise. The third question for the day is who among the following was conferred with the companion of the order of Fiji. Fiji is in Japan. Fine. And Japan में जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी अवार्ड है ये किसको दिया गया है? दी ऑप्शंस आर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू एंड श्री नरेंद्र मोदी. So the right answer for this MCQ is Honorable President Draupadi Murmu. Fine. इसके कंटेक्स्ट में आपको ये याद रखना है that it is the highest honor award of Fiji. Fine. And it has been given to Draupadi Murmu, the Honorable President, during her visit to Japan. The next MCQ is Gaurav. A long-range glide bomb was successfully tested by. The options are DRDO, ISRO, European Space Agency, and both PNs. So the correct answer for this MCQ is
your DR. Fine. Okay. So DRDO ने सक्सेसफुली कैरी किया है एक मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ गौरव. अब किस एयरक्राफ्ट से किया है? द एयरक्राफ्ट वाज सुखोई 30 Mk1. फाइन. एंड ये गौरव है क्या? यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन टू. दिस इज योर गौरव. फाइन. तो इट इज बेसिकली अ एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब जो क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग डिस्टेंसेस. एंड ये कौन सी क्लास के अंडर फॉल करता है? ये करता है आपका 1000 kg. 1000 kg क्लास के अंडर फॉल करता है. एंड इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड. फाइन. डिजाइंड एंड डेवलप्ड अलग चीज है और टेस्टिंग अलग चीज है. इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, विच इज इन हैदराबाद. तो अगर गौरव के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है, पूछा जाए कि अगर ये डिजाइन एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इट इज योर रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद. एंड अगर पूछा जाए कि इसको टेस्ट किसने किया है, तो इट इज योर DRDO. फाइन. दिस इज योर गौरव. फाइन. You can see it on the screen too, and it has been successfully tested by Sukhoi 30 Mk1 aircraft. Fine. Okay, the fifth question for the day is who has been appointed as the 27th chairman of State Bank of India. SBI के 27th जो है हमारे चेयरमैन कौन बने हैं? The options are अजय कुमार, राजेश कुमार दुबे, Chala S Sethi and Dinesh Kumar Khara. So the answer for this MCQ is here Chala S Sethi. Fine. Okay. So he is Chala S Sethi on the screen, and he has become the 27th chairman of SBI. इनका टेन्योर रहेगा हमारा 3 साल का. भाई. और इनसे पहले जो हमारे चेयरमैन रहे हैं उनका नाम था दिनेश कुमार खारा. तो दिनेश कुमार खारा जी को रिप्लेस किया है आपका छला श्रीनिवासुलु सेठी ने. एंड इज ऑन द स्क्रीन. फाइन. ओके. The next question for the day is 25th edition of Women and Men in India 2023 was published by Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Rural Development, and your Ministry of Social Justice and Empowerment. So ministries, as I always say, ministry से ये question रहता ही है, and the right answer for this MCQ is Ministry of Statistics and Program Implementation. Fine. Okay. So this is some static information about the scheme, and this publication projected India's population. तो ये जो publication है ये हमें बता रही है that by the year 2026 इंडिया की population हो जाएगी 152.2 करोड़. फाइन. एंड इसमें इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली एक चीज बहुत पॉजिटिव रही है, वो ये है दैट जो हमारा फेमिनाइन रेशियो है, वो इंक्रीज किया है. फाइन. 943 से 952 पे. तो यू कैन सी हमारा जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो पॉजिटिवली बढ़ा है, एंड दिस इज अ गुड थिंग. फाइन. एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है जेंडर इक्वालिटी. फाइन. ओके. फाइन. एंड दिस इज द 25th edition of Women and Men in India 2023 में जो हुआ. फाइन. ओके. So the seventh MCQ for the day is Air Exercise Udar Shakti 2024. It is a bilateral exercise basically. Right? Udar Shakti was held between Indian Air Force and which among the following? कौन सी Air Force के बीच में हुआ Udar Shakti? So options are Albanian Air Force, Royal Afghan Air Force, Royal Canadian Air Force, or your Royal Malaysian Air Force. So the answer for this MCQ is your Royal Malaysian Air Force. Fine. Okay. So let's see some static information about this thing. This, yes, it is on the screen. And 2018 में जो
हुआ था उग्र शक्ति में, इट वाज योर फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज। तो 2018 में आपकी फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज रही है, और ये वाली जो थी वाज योर सेकंड बायलेटरल एक्सरसाइज। फाइन। तो आपको ये याद रखना है दैट उग्र शक्ति किस किस के बीच में हुई है, बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड योर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। फाइन। So the next question is India's first PM Janaman colony. India's first PM Janaman colony is built in. So Janaman, basically this thing deals with CBTGs. Fine. So the options are Jobat, Shivpuri, Ratnapur and Bhopal. Fine. So the right answer for this MCQ is here Shivpuri. Fine. Okay. Let's see some static information about this PM Janaman. And as I have already told you, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बनी है पहली कॉलोनी कहाँ पे, शिवपुरी में, and शिवपुरी is in your मध्य प्रदेश. Fine. So the PM Janman, yes. What is the meaning of Janman? The PM Janman stands for प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. अब इसका जो PM जनमन ये है स्कीम है, इसका एम क्या है? द एम इज कि जो पीवीटीजी फैमिलीज हैं उनको क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज दी जाए, लाइक उनको परमानेंट हाउसिंग दी जाए, उनको वाटर सप्लाई के कनेक्शन दिए जाए, उनको रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, मोबाइल मेडिकल फैसिलिटी लाइक योर मेडिकल एम्बुलेंसेस, है ना, ये सारी. So these are your mobile, these fall under the category of your mobile medical facility. And your skill development करवानी है उनकी, and आंगनवाड़ी सेक्टर, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल कंस्ट्रक्शन. Fine. So PM Janman deals with your PVTGs precisely. Fine. Okay. The next question is on your screen, and it is which country will collaborate with India to build world's largest museum, Yug Yagin Museum. Fine. So the options are Iran, your Russia, your France, and your Egypt. So the right answer for this MCQ is your France. Fine. Okay. So let's see some more information about this thing. It says India and France इन्होंने क्या किया है, इन्होंने they have joined the hands to create this museum. अब ये म्यूजियम एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, और ये होगा कहाँ पे? ये प्रोजेक्ट रहेगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. फाइन. एंड ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रहेगा, जो कि दिल्ली के आइकॉनिक नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में बनेगा. फाइन. कंप्लीशन टारगेट इसका क्या रहेगा? कंप्लीशन टारगेट रहेगा हमारा बाय द 2026. फाइन. तो आपको ये याद रखना है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन से भी आपको ये याद रखना है, जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, जिसे यूके म्यूजियम कहा जाएगा, वो बन रहा है बाय द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. फाइन. ओके. So you can see the picture on the screen, and this is going to be your Yugya Yugin Museum. Fine. Okay. So the next question is on the screen, and the next question is, who has been appointed as Ambassador of India to United Nations in New York? The options are Pravathenini Harish, Ruchira Kamboj, Ashish Rana, and T.S. Murthy. So the right answer for this MCQ is your E. Harish. Parvathenini Harish. Fine. Okay. ये जो पोस्ट आपको याद रखना है, ये जो पोस्ट थी ये वैकेंट थी. कब से? जब से रुचिरा कंबोज रिटायर हुई हैं जून में, और जून के बाद अब जाके इस पोस्ट की फिलिंग हो रही है. एंड योर पी हरीश जी को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस भेजा गया है. योर पी हरीश जी, and he is appointed as ambassador of India to the United Nations. Fine. Okay. The next MCQ is right to disconnect. It was in news, and the right to disconnect was passed by which country? The options are your New Zealand, Australia, India, and Japan. Fine. So right to disconnect जो ये लॉ है, ये पास किया है आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने. अब देखते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट कहता क्या है. फाइन. राइट टू डिस्कनेक्ट कहता है कि वर्किंग और खत्म होने के बाद यू कैन इग्नोर योर बॉसेस. फाइन.
अपनी वर्क प्लेस से बाहर, अपने वर्किंग आवर से बाहर जब आपका टाइम खत्म हो गया, you have the right to ignore your bosses. This is a new law which has been passed by the Australian government. Fine. Right to disconnect. Fine. अगर अगर पूछा जाए कि right to disconnect fall under which article of the Indian Constitution? Article 19, Article 20, Article 21, or Article 22, let's say. So, or none, sorry, or none of these. Fine. So you are going to take none of these because हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा अभी कुछ नहीं है, एंड दिस इज द एक्ट व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. फाइन. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन. फाइन. एंड डेट्स एंड डे में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कीपिंग द जेकेएसएसबी इनटू कंसीडरेशन. Fine. So the question says World Organ Donation Day will be celebrated on which date? And the options are 10th of August, 11th of August, 12th of August, or 13th of August. Fine. So the right answer for this MCQ is here 13th of August. Fine. अब जो डेट्स एंड डे है, इसको याद कैसे रखना है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी कोई न्यूमोनिक बना सकते हैं, कोई एक्रोनियम बना सकते हैं, बट ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं. लेट अस सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन डोनेशन. फाइन. आप दो दोस्त खड़े हो, लेट्स सपोज ए एंड बी, आप दो दोस्त खड़े हो. आप एक पूछ रहा है कि ऑर्गन किसका डोनेट करना है, दूसरा कह रहा है तेरा. फाइन. तो लेट्स डेवलप सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. फाइन. ऑर्गन किसका डोनेट करना है, तेरा. फाइन. सो 13 से आप याद रखेंगे 13th ऑफ अगस्त. फाइन. अब थीम और स्लोगन. आई ऑलवेज से डेट्स में आपको थीम्स भी याद रखनी है. स्लोगन फॉर 2024 क्या रहेगा? बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th ऑफ अगस्त. 13 ऑर्गन डोनेशन का किसका हो रहा है? 13. फाइन. तो 13 से याद रखना है 13th ऑफ अगस्त. The next MCQ is on the screen and it is National Space Day. Is celebrated on 23rd of August, 24th of August, 25th of August, or 26th of August. Fine. So the answer for this MCQ is here 23rd of August. Fine. Okay. नेशनल स्पेस डे को आप कैसे याद रखेंगे? एज आई हैव ऑलरेडी सेड, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंगली कोई न्यूमोनिक या वो बना सकता है. तो स्पेस को आप याद रख लेंगे अगर लेट अस अज्यूम this is the structure of your atmosphere. Fine. This is your tropopause, stratopause, your mesopause, your thermopause. इसके ऊपर आपका एक्सोस्फेयर. फाइन. तो अगर आपको नेशनल स्पेस डे का याद रखना है तो आप लिटरली देखेंगे ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर है इसमें तो हम रहते हैं, इसके ऊपर आपको कितनी लेयर्स बची हुई दिखेंगी? 2 या 3 ही दिखेगी. फाइन. 1 2 क्योंकि एक्सोस्फेयर तो बाहर है, तो आपको दिखेंगी लाइक दिस वन और दिस वन, 2 या अगर ऊपर भी देखोगे तो ये. फाइन. तो 2 या 3 लेयर्स ही आपको एटमॉस्फेयर की अपनी, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको 2 ही लेयर्स अपने ऊपर दिखेंगी, 2-3 लेयर्स दिखेंगी. फाइन. तो 2-3 से आपने याद रखना है 23rd. फाइन. ओके. 23rd ऑफ अगस्त. तो थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे, अगेन थीम क्या रही है हमारी नेशनल स्पेस डे की? एंड द थीम वाज टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून. इंडिया स्पेस सेटअप. फाइन. टचिंग लाइफ व्हाइल टचिंग द मून. So this is the theme of your National Space Day 2024. Fine. Okay. Let's switch to the next MCQ, and the next question is National Sports Day is celebrated on. Again, one more question from the dates and day.
तो द क्वेश्चन इज कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हमारा ये कब बनाया जाता है? The options are 27th of August, 28th of August, 29th of August, and 30th of August. So the right answer for this MCQ is your 29th of August. Fine. Now let's see some more information related to the National Sports Day. थीम क्या रहा है इसका? 3 क्वेश्चन से 3 थीम. तो नेशनल स्पोर्ट्स डे का थीम 2024 का रहा है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल and inclusive societies. This is the theme for your National Sports Day 2024. Promotion, peaceful and inclusivity. आप पीपीआई से याद रखें भाई. पीपीआई से आप कुछ अब ऑप्शन में लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, थीम आ जाता है स्पोर्ट्स डे का, तो आपने 3 ये कैची वर्ड इससे याद रखें. पीपीआई. पीपीआई से आपका निकल जाएगा प्रमोशन एंड फाइन. तो यस द एम क्या है इसका? द एम इज टू ऑनर मेजर ध्यानचंद जो हमारे एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर भी रहे हैं. ही इज मेजर ध्यानचंद जी. यू कैन सी हिम ऑन द स्क्रीन. फाइन. So you can see him playing the hockey. Fine. Okay, let's switch to the next MCQ, and the next MCQ is reset program was launched on which among the following days? Reset program जो है ये किस दिन में दिए गए, किस दिनों में से लॉन्च किया गया है? नेशनल यूथ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे. फाइन. तो रीसेट प्रोग्राम जो है ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे पे लॉन्च किया गया. रीसेट प्रोग्राम. लेट्स सी सम मोर स्टैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट रीसेट प्रोग्राम. एंड रीसेट का मतलब है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग. फाइन. अब रीसेट प्रोग्राम क्यों कंसिडरेशन में लाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ताकि वो एथलीट्स, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाए. फाइन. एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा. एंड इंट्रोड्यूस किस डे पे किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल एज स्पोर्ट्स डे. फाइन. एम क्या रहा है? टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट इन देयर पोस्ट स्पोर्ट्स कैरियर. फाइन. अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? दैट द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी ऑफ एज रेंजिंग बिटवीन 20 to 50 years and he must have won some national medal or international medal or state medal. Fine. Or he must have participated in such event. तो पार्टिसिपेशन रही है या फिर आपका नेशनल खेले होने चाहिए या इंटरनेशनल खेले होने चाहिए या स्टेट खेले. फाइन. ओके. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑन द स्क्रीन एंड इट इज न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बाय इंडिया Israel will be set up at. So the given options are your IIT Madras, your IIT Kanpur, your IIT Bangalore, and your IIT Guwahati. Fine. So the right answer for this MCQ is your IIT Madras. New Water Technology Center. Fine. तो अगर NWTC का आपको पूछा जाए न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? सो इट इज योर IIT मद्रास. मद्रास में मद्रास और या इजराइल के एफर्ट से किया गया है. फाइन. ओके. So the next MCQ is on the screen and it is South India's first Adivasi library, Kanu, will be established at. Fine. साउथ इंडिया की इंडिया का साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी जिसका नाम है कानू, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी? फाइन. तो द गिवन ऑप्शंस आर हियर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड योर कर्नाटका. फाइन. So the right answer for this MCQ is your state of Karnataka. So this is your library Kanu. Fine, you can see it on the screen. थोड़ा सा मेंटल पिक्चर बना लीजिए ताकि मेमोराइज करने में आसानी रहे. Fine. Okay. Stepping to the next MCQ, it is Under 17 World Wrestling Championship 2024
was held at? The given options are Jordan, Syria, UAE, and none of the above. Fine. The right answer for this MCQ is here, Jordan. And आप देख सकते हैं कि इंडिया ने फिनिश किया है टॉप पे, अंडर 17 और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जॉर्डन में हुई। फाइन। तो टॉप पे अगर बात करेंगे तो हमारी इंडिया ही रही है। फाइन। ओके, so these are the respective athletes participating in World Wrestling Championship that took place in Jordan. Fine. Okay, so the capital of Jordan is Amman. Jordan, Amman, and first time Indian women team won the title. पहली बार इंडिया की जो विमेन टीम है उसने टाइटल जीता है विद 185 पॉइंट्स और पीछे छोड़ा है जापान को, क्या है 160 पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी जो इंडियन वीमेन टीम है ये टाइटल वन किया है कितने पॉइंट से, ठीक है। तो इंडिया जो है वो जीती है इंडियन वीमेन, राइट। एंड इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं इंडियन ने? 10 टोटल मेडल, 5 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज, राइट। ओके, the next MCQ is on the screen and it is fourth Kawa Women Volleyball National League was held at. The options are Japan, USA, Nepal, and your India. Fine. So the answer for this MCQ is here Nepal. Fine. Okay. Now KAVA stands for Central Asian Volleyball Association. Fine. Okay. KAVA stands for Central Asian Volleyball Association. हुआ है कहां पे? नेपाल। फाइन। जीता कौन है? इंडियन विमेन नेशनल वॉलीबॉल टीम। यहाँ पे भी हमारी इंडियन नेशनल जो वॉलीबॉल टीम है उसने जीता है और हराया है नेपाल को बाई 3-2 सेट इन द फाइनल। फाइन। You can see the athletes participating in the respective sport। फाइन। और इंडिया इसमें उभर के जीत के उभर के आया है। फाइन। ओके, the next MCQ is on the screen and it is 20th which state UT launched India's first rice ATM? तो इंडिया का पहला राइस एटीएम, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव अबाउट इट, कहां पे कौन सी स्टेट में खुला है ये? सो द गिवन ऑप्शंस आर योर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। फाइन। So the right answer for this MCQ is your Odisha। Fine। और ओडिशा में भी प्रिसाइजली भुवनेश्वर। फाइन। ओके, द नेम ऑफ द राइस एटीएम क्या है? इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। तो अन्न मीन्स योर खाना, फूड। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। फाइन। एंड 50 kg ग्रेन रिलीज करता है ये एटीएम 5 मिनिमम लेटेंसी, आई गेस बहुत ज्यादा। फाइन। तो एम क्या रहा है? टू रेवोल्यूशनाइज द पीडीएस सिस्टम फॉर राशन कार्ड होल्डर्स। तो आपको भी याद होगा जो भी हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो पुराने टाइम में राशन स्टोर्स पे जाया करते थे एंड दे हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू, फाइन, wait for their turn and then only they were able to collect their this cereals or crops or whatsoever. Fine. So now this thing, the rice ATM, it has revolutionized the public distribution. Fine. Now what you have to do is you have to go to the rice ATM and आपको राशन कार्ड का वो पंच करना है अपना नंबर वगैरह के साथ आपको ग्रेन्स मिल जाएंगे। 5 मिनट में 50 kg लिमिट ये रिलीज करता है। और राइस एटीएम का नाम क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। कहां पे हुआ लॉन्च? उड़ीसा में। प्रिसाइजली कौन सी जगह में? भुवनेश्वर। फाइन। So you can see on the screen the rice ATM is work like something. Fine. Okay. Fine. तो इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे JKPSI के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में आप जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं दे कैन कम एंड दे कैन विजिट अवर कैनाल ब्रांच रोड एंड उनको वहाँ पे सभी जो क्वेरीज हैं
आंसर वहाँ पे मिल जाएगा. एंड अदर देन दैट, offline and online fresh batches are going to start for the NAIB upcoming NAIB Tehsildar examination 5 and the examination for the post of Patwari 2. Fine. And इसके अलावा प्रहार नाम से हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है. एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस go for the test series at least once or twice, but you should. Fine. And this is all for the day. And आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.